स्टार्ट करते हैं। पिछले वाला जो मैंने पढ़ा था, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। देयर एनी डाउट? नो ना? No, sir. Okay, so now let's start scope of international business. What are the scope doing international business? Okay, क्या क्या है scope? देखो, the scope of क्या लिखा है यहाँ पर? The scope of international business is extensive, very vast. Extensive means very depth, very vast, encompassing various activities that facilitate cross-border transactions and operations, international trade. Now, involving the import and export of goods and services is the core component of doing international business. Always remember one thing: doing international business, there is an involvement of import and export of goods and services. This is the main criteria, or this is the main characteristics of international business: import and export, and apart from that, services, goods and services. Okay. Now, it is a core component. It is a main core component. Goods and services. Sorry, import and export, goods and services. This is the core component of international business. Okay, driving economic growth and fostering global interconnectedness. Okay, obviously, if you are doing international business, there will be a mutual understanding between the two countries. There will be the growth of two countries. Okay, if you are doing international business, because you are also earning profit by importing or exporting the goods, vice versa, the same thing to other countries. They are also importing and exporting goods from us or from other countries, and they are also getting benefited from that. Now, licensing and franchising involve granting rights to use intellectual property. Okay, enabling business to expand their reach without significant capital investment. This is another important criteria of doing international business. Contract manufacturing and outsourcing involve production and service performed abroad. This is another characteristics of doing international business. What is this? Obscuring involvement of productions, services performed abroad, offering cost advantages and access to specialized and expertise. Okay, this is another important criteria of doing international business. So, lot of things are there in international business. The first one is, always remember, that is import and export. Next one is goods and services. That is another important criteria. And apart from that, there is a licensing and franchising involved, granting rights to use intellectual property, enabling business to expand their reach without significant capital investment. There is another important criteria you must remember to do international business, that you should have a license of this doing international business, special agreement or special permission from the government of that particular country to whom you are doing international business, and to your country you need to take the permission from your government also. After that, they will going to provide you the license, and on the basis of having the license, you can do your import and export business, or whatever the business you want to do internationally. Okay, this is the main criteria, or this is the main scope of doing international business. Now, examples of international business activities illustrate the breadth. Illustrate means expand. Okay, now examples of international business activities illustrate the breadth of its scope. Like outsource its production is Vietnam, leveraging lower abor cost and manufacturing expertise. McDonald's franchises its restaurants in India, adapting its menu and operations to suit local taste and preferences. Okay, Siemens establishments manufacturing plant uh, uh, in China, capitalizing on the country's growth uh, market and skilled workforce. These examples demonstrate how business utilize various strategies to engage in international business and achieve their strategic objectives. Now, Abhijit, remember one thing. Suppose suppose the McDonald company, they want to establish its outlet in India.
They want to have a franchisee in India. Now, what will they do? First of all, they will have the permission. They will need to take the permission from the government. They should have a proper license with a proper agreements. And after that, all the process is done. Then they are able to open the franchisee in India. Now, the first and most important thing is that whatever the suppose the originality of McDonald may be in America or United States, wherever it is. Okay, there may be the establishment of that particular company. Now they want to open a franchisee in India. Now, if they want to open a franchisee in India, whatever the quality of the food or whatever the quality of the product they are manufacturing, that they always need to keep in mind about the customers preferences. Now Indian oriented customers are spicy oriented. India is a spicy oriented country. Especially Indian people are very much crave about the spices, masala. They are very much crave about the spices, masala and all. लेकिन वही मैकडोनल्ड आप कोई दूसरे कंट्रीज में जाके आप खाओ, पिज्जा को खाओ, वहां पर देखिएगा उतना मसाला नहीं इस्तेमाल किया जाता. Oregano's, थोड़ा सा oregano, थोड़ा सा chili flakes, that's all completed. But if we coming to our India, if the same franchisee coming to our India, manufacturing the same product, same goods, they need, first of all, they need to have look at the preferences of the customer. What the preferences like most, what the customer like most. If I made the McDonald's, the pizza and all, whatever the products, it's plain, it will be tasteless for our Indian people because Indian people are spicy oriented people. Okay, the same with the things with the Siemens also. Siemens is a medicinal company. Medicinal company. Okay, now it is in China based. Now suppose an Indian people or Indian country want to, and so now sorry, now Chinese the China government want to have a franchisee, want to take a franchisee in India. They want to open an outlet in India. Okay, now what will happen? They will first of strongly they will going to prefer the Indian customer. What the Indian customer is, what their preferences, what Indian customers have the preferences. They will first of all look into that. So this is the way the international business used to follow. Okay, is that any international business, whatever the international business, whether it is manufacturing goods, manufacturing products, import, export, whatever the thing, they always keep the customer in their priority basis. I need to follow the customer preferences. Then only you are able to have the, you can see the profit, you can see that your company is growing to other countries if you follow the customer preferences. ठीक है, कस्टमर प्रेफरेंसेस सबसे इंपॉर्टेंट है. उसके बाद देखो लिखा है द चॉइस ऑफ एंटिटी entry mode depends on a variety of factors. Now if you want to get entry into other countries, want to establish an international business, want to do an international business abroad, then the company's resources, strategic goal and risk tolerance you need to keep in this thing in your mind. What are the things? First of all, strategic goal. What should be your strategy? If you want to establish a company, a business, if you want to do an international business with other countries, first of all, you need to develop the strategies. You need to set the goal according to that. And after that, you should have the temperament to take the risk. दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. अगर आपको बिजनेस करना है, कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करना है, मैं इंटरनेशनल बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं. अगर आप जमशेदपुर में रहते हुए कुछ छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजीज तैयार करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग गोल सेट करना पड़ेगा. और नेक्स्ट जो है आपको रिस्क लेने का टॉलरेंस, जज्बा, टॉलरेंस आपको होना चाहिए. क्योंकि बिजनेस में हमेशा जरूरी नहीं है फायदा ही हो, आपको प्रॉफिट लॉस का भी मुंह देखना पड़ेगा. यस सर. लॉस का भी मुंह देखना पड़ेगा. आपको मालूम है कैफी कॉफी डे रिनाउंड सीसीडी. एक मतलब कॉफी एक सीसीडी. फ्रेंचाइजी था. हाँ हाँ. सीसीडी. हाँ, लेकिन क्या हुआ, इस कुछ कारणवश एक्सीडेंटली उनका जो ओनर था वो एक्सपायर कर गया.
बहुत सारा दुकान बंद हो गया, बहुत सारा आउटलेट बंद हो गया, लेकिन उनकी जो वाइफ मिसेस थी, उनका जो वाइफ था, उन्होंने उस चीज को फिर टॉलरेंस में लाया, उनको वो टॉलरेट किया, उन्होंने फाइट किया, और धीरे धीरे कैफे कॉफी डे फिर से सीसीडी जो है अब धीरे धीरे बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर फिर से वो धीरे धीरे उस पोजीशन में आ रहा है। सेम विद द थिंग्स। अब एक और आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, देखिएगा, आप इससे रिलेट कीजिए, इट विल बी फाइन एग्जांपल टू यू। पूजा स्वीट्स, जमशेदपुर का एक फेमस नाम, पूजा स्वीट्स, जानते हो? नॉट ओनली इन, स्पेशली इन जमशेदपुर, पूजा स्वीट्स जो है मिठाई की दुकान इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्वीट्स मार्ट in Jamshedpur. But don't know the reason. I personally visit to Puja Sweets, which is in Baridi branch. They have a one branch, they have one outlet in Baridi. I visit there. I visited there, and I talk personally with the means. I cannot say the owner. I just say the worker, with the workers or the employees. That what is the reason? Maximum outlet of Puja Sweet is being shut down. What is the reason? Even they don't know the reason. I don't know whether they know or don't know, but they don't want to disclose it to normal customers. Okay, I personally asked them, what is the reason why maximum outlet of Puja Sweets being shut down? What is the reason? Kadama, they have a main epicenter. Kadama Bistipur Sakchi, it is known as the epicenter of Jamshedpur. There the outlets are being shuttered down. Okay, maximum shutter. Mango region, prime location. Mango regions means you find the Mango regions. People coming from Purulia, people coming from Rachi, people coming from Bokaro, Steel, Giridih, Dhanbad. The peoples are coming from there. But that is the epicenter. Mango is also the known as the epicenter of business area. But the same thing, the puja sweets being shut down over there. Also, what is the reason? Finally, I start doing research on this, and I just Google it. Puja Sweets Bullets, just go through the Facebook and all. And somewhere I found the hint that there is a dispute, there is a family dispute going on in between Puja Sweets. And that is why maximum shops are being, only 20% to 25 to 30% shops are now been there in Puja Sweets. Maximum sweet shops or sweet mart are been closed because of family problems, because of family dispute. This is the reason. ओके, तो इसका एग्जांपल्स देने का मुझे एक ही रीजन था, क्योंकि आपको अगर रिस्क टॉलरेंस, स्ट्रेटजीज, गोल, ये तीन चीज में आपको काम करना अगर नहीं आया, तो फिर आप कोई भी बिजनेस से आगे नहीं बढ़ पाओगे। सपोज आज आप लंच कर रहे हो, आप एक मैनेजमेंट की तरफ से आप एक काम कर रहे हो, कुछ टारगेट आपको मिलता है, आप उस टारगेट अकॉर्डिंगली आप काम करते हो। आपके जो ऊपर का एचआर है वो आपको कहता है, मिस्टर अभिजीत, आई नीड टू सी दैट दिस वर्क मस्ट डन विद इन दिस फ्यू डे, विद इन दिस डेज, विद इन दिस टेंटेटिव डेट। आप उस टेंटेटिव डेट पहले या बाद में आप काम कर देते हो। तो जब आप काम करते हो तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रेटेजीज तैयार करना पड़ता है ना, कि मुझे ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके काम करना पड़ेगा। आई नीड टू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी इफ आई वॉन्ट टू start this work. I need to follow this strategy. If I follow these strategies, then only I can reach to my tentative date and I can finish my achieve my goal. This is the way. तो बिजनेस उसी तरह से है, चाहे इंटरनेशनल बिजनेस, चाहे नॉर्मल बिजनेस, चाहे डोमेस्टिक, चाहे कोई भी बिजनेस, आपको सबसे पहले स्ट्रेटेजीज, उसका गोल, अपार्ट फ्रॉम दैट रिस्क आपको लेने आना चाहिए। बिकॉज इन बिजनेस 2+2 4 भी होता है, 2+2 5 भी होता है, या 2 और 2 22 भी होता है। Remember one thing. This is the thing. Exporting is often the initial step for business seeking to enter international market. देखो यहां से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैंने ये डॉक्यूमेंट प्रोसेस में ये पीपीटी तैयार किया है। क्या लिखा है? डैश इज ऑफन द इनिशियल स्टेप फॉर बिजनेसेस सीकिंग टू एंटर इंटरनेशनल मार्केट। तो एक्सपोर्ट वो जरिया है, एक्सपोर्ट इज ओनली द वे you can have
your international business link with other countries. If you want to grow internationally, if you want to establish yourself internationally, if you want to do international business, the first and prime important is the export. The export is only the way you can establish international business to any countries. Bus, you shouldn't have any criminal record. You should have proper license. You should have proper agreements from the both of the government of that particular countries where you need to start doing, want to start your international business. ये सबसे मेन क्राइटेरिया है. ठीक है. The initial step for business in while FDI represent a deeper commitment and greater involvement. Licensing and franchising provide intermediate options, allowing business to expand their presence without significant कैपिटल इन्वेस्टमेंट. अनदर ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां से बन सकता है. देखो, इसलिए मैं लाइन वाइज थोड़ा सा जा रहा हूं. डैश is the intermediate option allowing business to expand without significant capital investment. आंसर क्या होगा? licensing. Licensing is the licensing and franchising. I'm sorry. Licensing and franchising are the immediate options that allow or expand your international business significantly. ये दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है. अब अभिजीत, मेरा सवाल का एक जवाब दो. अगर मैं मुर्गा दुकान खोलूं तो मुझे क्या कैपिटल की जरूरत है? याद है? पता है कुछ? यू आर अ बिजनेस, यू आर एन एम्प्लॉय. मैं एक पोल्ट्री फार्म की दुकान खोलूंगा जहां मैं चिकन बेचूंगा. क्या कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, बता सकते हो? सर जीरो आपको एक परसेंट कैपिटल. जीरो यस सर कैपिटल. एक चवन्नी मुझे खर्चा नहीं करना पड़ेगा. कुछ कुछ इंटरनेशनल बिजनेस ऐसा है जहां आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत बिल्कुल जीरो है, बशर्ते आपको लाइसेंस और फ्रेंचाइजीज आपके पास होना चाहिए. बस 0% कैपिटल से आप इंटरनेशनल बिजनेस में एक्सपोर्ट कर सकते हो. ये पहला कदम है अगर आप चाहते हो कि मैं इंटरनेशनली बिजनेस सेट करूं. अंडरस्टूड? दिस इज द, इसलिए मैंने इसका रेफरेंस का एग्जांपल दिया कि इफ यू वांट टू ओपन ए पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री शॉप, यू नीड टू रिक्वायर अ 0% कैपिटल. 0% इन्वेस्टमेंट में आप स्टार्ट कर सकते हो. क्या करना है? पहली लॉट में आप माल खरीदिए, जितना बेचे उसका पैसा आप दीजिए. दैट्स ऑल. मैंने आज 20 पोल्ट्री मुर्गी खरीदा, बहुत सारा. इसीलिए तो अभी कदमा एरियाज में छोटे मोटे बहुत सारा 15, पहले 3-4 दुकानें थी. नाउ आफ्टर होली, Abhijit, you will surprised to know that near about there is a 5% inflation or 5% growth of this poultry shop. अभी कदमा में लगभग उलियान, कदमा और जो गोलचक्कर के रीजन में अभी 5 और नई दुकानें ओपन होंगी. 5 नई दुकान. एक ही मुर्गी का ट्रे लेके बैठता है, एक ही ट्रे आता है, एक ही मुर्गी का ट्रे लेके बैठता है. जितना बेचता है उसी का पैसा वो देता है. आज सारे दिन में वो 5 मुर्गियां बेचे तो 5 मुर्गिया के दाम, 5 मुर्गिया एक एक, सपोज वो 150 रुपीज किलो बेच रहा है तो 5 मुर्गिया का कॉस्ट कर लो, उतना ही वो पेड कर रहा है. That's all. This is called the 0% investment. Okay, understood? Investment. Contract manufacturing and outsourcing enable business to focus on their core competencies while leveraging external resources and capabilities. जैसे मैंने आपको बताया कि franchisee and licensing are the only way where you can step ahead. Once you can put yourself one step ahead of doing इंटरनेशनल बिजनेस. बस आपको फ्रेंचाइजी और लाइसेंस, ये दोनों चीज की जरूरत है ऑब्वियसली. ठीक है, तो ये हो गया स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. कोई डाउट है? इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस दैट कम्स टू योर माइंड, यू कैन आस्क मी. नो सर.
ठीक है मैम, प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. Now, significance of international business. Another term for significance is importance of international business. What is the importance of doing international business? देखो फिर से थोड़ा सा रीड करता हूं. इंटरनेशनल बिजनेस ऑफर न्यूमरस बेनिफिट. इसलिए इंटरनेशनल बिजनेस करना बहुत जरूरी है. न्यूमरस बेनिफिट, यहां वर्ड क्या यूज किया है? न्यूमरस. बेनिफिट का कोई हिसाब किताब नहीं होता है, नहीं होता है. आप अगर इंटरनेशनल बिजनेस करते हो, न्यूमरस, you cannot count how much profit you can make it from international business. That is why after the when 2014, I just take it your mind to a little. I can just I am shifting my topic to a political. Then you can understand it better. In 2014, when the inception of BJP in Gujarat, Delhi, in a big scale, when BJP come out as a winner, the first prime importance done by Narendra Modi ji is that shattered the uh, international export. That is why China was in state of loss. Nearly 25 to 30% of business export. China is doing. China is 25% earning profit from India, because we are means we are means indulge using China products. We are very much indulge ourselves using China products. China bulb, China LEDs, China fan, electricity, electronics equipments, lot of things. Even in Deepavali, the lights, candles, electric lights. Okay, that are also being we are purchasing it from China. But this government has changed this idea, changed this view. And after 2014, 15 or 16, I think there is suddenly a downfall in China's electronic market. Why? Because India is a good exporter of China products, big exporter of China products. Now India is shattering the business, closing their business. They doesn't want to deal anything more with China. Indian products, we are using Indian Diwalis, we are using Indian lamps, we are using Indian candles, electronic items, Indians, maximum. So, what happened? China previously earned a numerous benefit from India with this type of product. Now, driving growth, enhancing competitiveness, and increasing profitability, making the expansion is a primary driver, enabling business to reach new customer, increase sales, and diversify revenue stream. Now, resource acquisition provide access to raw materials, labor, technology, and other essential input, improving efficiency and reduction cost. Okay, these are the main criteria of doing international business. What are they? Increase, there will be an increase in profitability, there will be enhancing competitiveness, there will be growth, there will be maximum benefit you can earn from the your business, new reach, new customer, new preferences of the customers. There will be increase in sales. There will be revenue stream. You can generate diverse way. You can diverse way increase the revenue system. Okay. There will be ample acquisition of resources. You can provide the raw materials, labor, technology, and other essential input with improving efficiency and reduction cost. इतना सारा न्यूमरस बेनिफिट हमको इंटरनेशनल बिजनेस करने से मिलता है. यहाँ तो कॉमा देके लिखा हुआ है, और भी इसके अलावा और भी. ठीक है. Reduction is achieved through lower production cost, economic of sales, access to favorable tax regime, risk diversification reduces
dependence on domestic market, mitigating the impact of economic downturns and political instability. लेकिन कुछ कुछ कभी कभी कुछ कुछ दिक्कतें आती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आया, तो देयर इज एन इंस्टेबिलिटी इन पॉलिटिकल, and suddenly there is a downfall in China market, because China, India are not in a line to not aligned with China to take any further electronic product from China, जिसकी वजह से वहां पर सेल्स बहुत भारी मात्रा में डाउनफॉल हो गया था, गिर गया था। ओके, तो ये कुछ कुछ क्राइटेरियाज जो है ना, आपको फिर बाद में दिक्कतें हो सकती है। क्या? इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, अगर उस कंट्रीज का इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा नहीं है, तो आपको वो प्रॉफिट अर्न करने नहीं देगा, आप वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाओगे। इंस्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक, अगर कंडीशन अच्छा नहीं रहा। दूसरी बात, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अगर पॉलिटिकल इंस्टेबल हो गया, वहां पर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, तो फिर वहां आपको बिजनेस करने के लिए बहुत दिक्कतें हो जाएगी। यही दो सबसे बड़ी रोड़ा है इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए। दिस इज द मेन टू क्राइटेरिया। ओके, दिस इज द ओनली मेन ड्रॉबैक, टू ड्रॉबैक ऑफ डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस। एक तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी अगर आ गया, देन you cannot earn profit of doing international business. Another one, if there is an political instability, then the same result will be the same. Examples of businesses leveraging the benefit of international business abound. Walmart expanded into Mexico. Walmart नाम सुने हो? वॉलमार्ट का एल्मंस आता है, वॉलमार्ट का शॉपिंग मॉल है, Yes, sir. वॉलमार्ट का बहुत सारा प्रोडक्ट है। तो ये वॉलमार्ट कहाँ का है? मेक्सिको में है। आप यहाँ जो वॉलमार्ट है, वहां आप उस शॉपिंग सेंटर में जाके देखिए, there will be huge difference. In Kadma, there is a Walmart in Sakchi. You just go and visit. Lot of local products are there. Lot of local goods are there. The same Walmart, if you visit to Mexico, you can find it different thing. Why? Depend on customer preferences. Customer यहाँ क्या चाहता है? यहाँ क्या चाहता है कस्टमर? अब मेक्सिको का जो कपड़ा है, हमारी माँ बहन बेटियां वो सब नहीं पहन सकती है। अब वो कपड़ा लगा के अगर मैं यहाँ पर बेचने की स्टार्ट कर दूं, तो 2 दिन में ताला लग जाएगा, बम से उड़ा देगा। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? वहां का जो Yes, खाना है, sir. मेक्सिको का जो मेक्सिकन जो फूड है, अब मैं यहाँ पर लेके आके चलो, दाल चावल खाने वाला, रोजगार करने वाला जो इंसान है, आम जिंदगी जीता है, और वहाँ मेक्सिकन डिशेस जो है, मैं यहाँ पर चला वॉलमार्ट में, विल इट बी पॉसिबल फॉर द कस्टमर्स, इंडियन कस्टमर, जमशेदपुर कस्टमर, टू the preferences of Mexican dishes and all? One day, okay, it's fine. One. 365 into 365 days, 24 घंटा 7 दिन, आपको वो मेक्सिकन का जितने भी मैं यहाँ पर चलाने के लिए बोले, वहां पर रॉ फिश, टिन फिश, टूना फिश, सब कैन में आता है। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। यहाँ चलाएगा नहीं यार। No, संडे sir. होने से, सुबह होने से झोला लेके हमको मछली बाजार जाना पड़ता है, सबसे ताजा मछली Hmm. लेके घर में आएंगे। वहां टिन वाला जो पैकेट वाला फिश होता है, क्या हम खाएंगे? नहीं, 1-2 दिन इट्स ओके, बट 365 डेज नो। लेकिन मेक्सिकन में होता है। तो जो जहां का, अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हो, सबसे पहले आपको कस्टमर प्रेफरेंसेस जानना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी डेवलप करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन सर्वाइव, अदरवाइज देयर विल बी अ ग्रेट डाउनफॉल ऑफ द बिजनेस। और इसीलिए वॉलमार्ट नामी दामी कंपनी है, और अभी तक चल रहा है। साक्षी में जाके देखो, अगल बगल रिलायंस वगैरह बहुत कुछ खुला हुआ है, लेकिन वॉलमार्ट बहुत भीड़ है। वॉलमार्ट बहुत भीड़ है। दिस इज द रीजन। सो द डिसीजन टू एंगेज इन इंटरनेशनल बिजनेस रिक्वायर केयरफुल कंसिडरेशन। लास्ट में राइटर इसीलिए बोल रहा है, यू शुड टेक द डिसीजंस वेरी वेरी केयरफुली। इफ एनी सिंपल मिस्टेक, it will going to create a huge loss. Be careful while considering with their potential benefit and risk. If you're taking risks, take the risks in a good way. You should think twice, thrice, 10 times while taking the risk. Business must access their readiness to compete in global market. Develop in appropriate strategies. वो जो पहला लिखा था, सेम यहीं पर चीज रिपीट किया गया है। स्ट्रेटेजीज डेवलप करना पड़ेगा। Build the necessary capabilities
आप में जितने कैपेबिलिटीज है उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान तैयार करना पड़ेगा. However, the potential reward are significant, offering opportunities for growth, involve in innovations and long-term sustainability. If you want to sustain in this international business for a longer time, then you need to follow all these characteristics. Be tactics, be mindful, be risk taking, be ready to take risks. Apart from that, you need to develop appropriate strategies and also build the necessary capabilities. With these strategies, you can only grow and sustain in international business. ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा और मैं क्लियर करके देता हूं. मैम प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. इंटरनेशनल बिजनेस जैसे छावा, रिसेंटली मूवीज एक आया है छावा. ठीक है, बहुत बड़ा हिट हुआ है इंडिया में, बहुत बड़ा, बहुत सारा रिकॉर्ड्स तोड़ Yes, दिया sir. है. एवेंजर्स एंड गेम का रिकॉर्ड तोड़ दिया, बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया, केजीएफ 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द केजीएफ 1, आई एम टॉकिंग अबाउट द केजीएफ 2 वन डे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड. केजीएफ 2 का रिकॉर्ड तोड़ा था स्त्री पार्ट 2. स्त्री पार्ट 2 का भी रिकॉर्ड ये छावा तोड़ दिया. गदर 2 का बॉक्स वन डे बॉक्स ऑफिस जितना कलेक्शन हुआ उसका रिकॉर्ड. मतलब ये छावा जो मूवीज आया था 2025 में, विकी कौशल और क्या राशिका मदानी ने कौन एक्टिंग किया था, इट्स ब्रेक ऑल द न्यूमरस रिकॉर्ड्स, न्यूमरस रिकॉर्ड्स. वर्ल्ड वाइड भी बिजनेस किया है, बहुत सारा लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट करके, डब्ड करके वहां पर रिलीज किया गया है. लेकिन जिस तरह का रिस्पॉन्स हमें इंडिया में देखने को लिए मिला है, वहां उस तरह का रिस्पॉन्सेस हमें नहीं मिला है. हाउ मेनी पीपल आर देयर, एक्चुअली छावा जो मूवीज था, बहुत सारा इंडियन ओरिजिनेटेड पीपल आर residing in outside the countries, maybe in America, Australia, Paris, London, Canada. तो उनके दिमाग में रख के ये फिल्म बनाया गया था कि हम वहां के दर्शक भी, फॉरेन में जो इंडियन दर्शक है वो भी इस फिल्म का लुत्फ उठाए, मजा ले. ये सोच के डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने इसका फ्रेंचाइजी वहां पे बाहर में भी देखी गया, बाहर में भी रिलीज करवाया. लेकिन उस तरह से वो हिट नहीं हो पाया, उस तरह से वो जो एक डेप्थ क्रिएट करना, वो क्रिएट नहीं कर पाया. साउथ में भी रिलीज किया गया है, बट हार्डली इट हैज डन अ गुड बिजनेस. ओके, लिटिल 50-50. The business was 50-50 because South Indian people very much follower of Rajnikant, Allu Arjun, and another nephew of Allu Arjun. I forgot the name. Chiranjeevi's son. I forgot the name of that particular hero. NTR, NTR, Junior NTR. Junior NTR. These all are the means. These all are the leaders ruling the South Indian people. Now here, though Chhawa has worldwide, they has created a very good impact in Delhi, Chennai, Delhi, big cities. I'm not big cities. Delhi, Bombay, Gujarat, Ahmedabad, Calcutta. They have done a very good business. But when it try to release, producer try to release this picture abroad and in South, there is a mixed reaction comes it out because lot of supporters are there who trying to defend it by saying that no, Aurangzeb will not treat this Shivaji's son in this way. This in this manner, he was not been treated. There is no written document is been produced that in the during the capturing of Shivaji's son, he was been tortured for 40 days like this, inhuman torture for 40 days like this way. No, there is no such written record is there. And that is why people trying to fight with this. Okay, because they have a, they create a, they give a very good reason of that. Why? Because in the courtyard of, in the court of Aurangzeb, lot of Hindu peoples are also there. They are working as an employee. They are getting pension. They are getting salaries.
And apart from that, in Shivaji's court, lot of Muslim people are there. They are also pensioners. They are also employees. They are also getting money, monetary help from the Shivaji. तो हाउ कैन इट बी हैपन? सो ये अलग बात है, इसीलिए वहां पर वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया। ठीक है, समझ में आ गया? तो इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए आपको थोड़ा स्ट्रेटेजीज करना पड़ेगा। क्या करेंगे? एवेंजर्स एंड गेम ने यहाँ आके क्या किया कि वहां पे बिजनेस किया, यहाँ पे बिजनेस किया, कैसा क्या रीजन क्या था? थ्री इडियट्स या फिर पीके। पीके चाइना में बहुत हिट हुआ, लेकिन पीके को जब और बाहर रिलीज किया गया, चाइना के बाहर भी रिलीज किया गया, उतना हिट नहीं हुआ। व्हाई? बिकॉज टेस्ट, बिकॉज ऑफ द टेस्ट, बिकॉज ऑफ द टेस्ट। लेकिन एवेंजर्स इन गेम एक ऐसा मूवीज बना, पूरा वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया। व्हाई? बिकॉज इंडियन कस्टमर आल्सो देयर, they know the Indian preferences, that they know the actions. Apart from that, outside India also there, they know that this type of customers are there, they will going to attract these movies, they will going to have these movies in a significant way. समझ में आ गया? So this is the significance of doing international business. ठीक है मैम, प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड इफ यू आर देयर। हेलो, यस, थैंक यू। मैंने सोचा आप लंच करने के लिए चले गए। चैलेंजेस इन इंटरनेशनल बिजनेस, क्या क्या चैलेंजेस हो सकता है? पिछले स्लाइड में भी कुछ कुछ मैंने आपको बताया था क्या क्या चैलेंजेस हो सकता है, फिर भी मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। कल्चरल डिफरेंसेस, देखो डबल डॉट देके कल्चरल डिफरेंसेस बहुत बड़ी बात है। मैंने आपसे कहा था कि मेक्सिको में वॉलमार्ट का इंसेप्शन इस्टेब्लिशमेंट था। इन वॉलमार्ट वॉलमार्ट का जो जितना भी था वो मेक्सिको में था। तो वहां का बिजनेस जब यहाँ आया, तो मैंने आपको बताया ना कल्चरल डिफरेंसेस हो सकता है, क्योंकि मेक्सिकन पीपल आर वेरी मच, दे लाइक शिप मीट, दे लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूजन्स। Mexican cuisines are there which Indian people doesn't like. Few people may like for 1 or 2 days, but regularly for 365 days, if you want to have the Mexican dish, it will never ever be going to be. It is next to Yes. impossible. Never. They are very much beef oriented. They are very much what you can say. A lot of different type of meats. They are very much crave toward different type of meats. तो आपको क्या लगता है यहाँ पर उस तरह का मीट हम चलाएंगे तो वॉलमार्ट बंद हो जाएगा? तो कल्चरल डिफरेंसेस जहां पर बहुत सारा है, और हमारे इंडियन कल्चर्स में बहुत सारा कल्चर है, बहुत सारा ट्रेडिशंस है, बहुत सारा ट्रेंड्स है, बहुत सारा लैंग्वेजेस में हम यहाँ बोलते हैं। हमारे जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इतने सारे डाइवर्सिटीज में हमारे यूनिटी दिखता है। तो कोई एक जन अगर बीफ खाना पसंद करता है तो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन करेगा, डेफिनेटली दे विल गोइंग टू ऑब्जेक्ट, नो नो नो, ऐसा मत कीजिए। तो यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत यही है, कल्चरल डिफरेंसेस सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से अब हर एक बिजनेस आप यही नहीं कर सकते हो। Cultural differences pose significant challenges in international business. Cultural differences pose significant challenges in international business, impacting communication, marketing, negotiation, and management. Language barriers can impede effective communication, leading to misunderstandings and inefficiencies. Differing, differing communication styles and etiquette require business to adopt their approaches to build a rapport and establish trust, values, belief, and attitudes towards work. Time and authority influence employee motivation, management practices, and organization culture, organizational culture। देखो यहाँ पर बहुत एक इंपॉर्टेंट बात लिखा है, क्या लिखा है? लिखा है मैनेजमेंट लैंग्वेज बैरियर कैन impede effective communication, leading to misunderstanding and inefficiencies.
लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बड़ा बैरियर्स है, और इसीलिए सबसे बड़ा चैलेंजेस यही है बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस में, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, लैंग्वेज बैरियर। बिकॉज लैंग्वेज एक ऐसा है कि आपको पता चलता है कि किस कल्चर का इंसान है वो, क्या उसका माइंडसेट है। ठीक है, इसीलिए बाहर में अगर आप बिजनेस करने के लिए जाते हो, कस्टमर प्रेफरेंसेस सबसे इंपॉर्टेंट, उनका प्रेफरेंसेस जान के ही तब जाके आप इंटरनेशनल बिजनेस कर पाओगे। तो इसीलिए कल्चरल डिफरेंस को सबसे प्राइम सस्पेक्ट माना गया है कि फेलियर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, उसमें सबसे पहला ये कल्चरल डिफरेंस को रखा गया। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस इज एविडेंट इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ये सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल, इफ यू वांट टू डू एनी इंटरनेशनल बिजनेस, this is the prime evidence that there is an impact of cultural differences will going to impact your business operations. For example, देखो क्या लिखा है, मैकडोनल्ड्स adapts its menu to local taste in India। देखो, मैंने जो पहले स्लाइड में 2 स्लाइड पहले बोला था, सेम चीज यहां पर लिखा हुआ है। I have given you this example that McDonald may be the company of outside. It is an outside company, American company or United Kingdom's company or Australian company, McDonald. Hometown. There the business has started. Now suddenly McDonald, owner of the McDonald wanted to open a franchise in India because India is a means what you can say, every outside country want to do a business in India because here lot of cultures are there, lot of people are there, different culture, different taste, with lot of varieties. That is why everybody, the every international businessman want to do business with India. Now McDonald, one of them, McDonald's owner of the McDonald want to start a business with India, and that is why he has opened a franchise in India. But the problem is that when he started making pizza, burger, hamburger, French fries with taste of American taste. So people doesn't like that taste because Indian people are very much spice oriented. People are there. I have Yes, told you sir. earlier. Yes, तो sir. स्पाइसी खाने का हमें आदत है, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, सूखा मिर्चा का थोड़ा फ्लेक्स रहेगा, ओरिगोनो का रहेगा, उसमें बहुत सारा मसाला रहेगा, ब्लैक पेपर रहेगा। तो जिसकी वजह से जब ये यहाँ स्टार्ट किया गया था, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन दैट। तब जाके ओनर को पता चला कि नो, आई नीड टू चेक द इंडियन प्रेफरेंसेस, एंड दे फाइंड इट दैट इंडियन पीपल आर वेरी मच स्पाइसी ओरिएंटेड पीपल, मसालेदार पीपल यहाँ पर है, स्पाइसी मसाला खाना इनको पसंद लगता है। तब जाके इन पिज्जा में बहुत सारा टॉपिंग्स, बहुत सारा मसाला, बहुत सारा एड ऑन करके वो बनाएगा, तब जाके वो चला। लेकिन आप अगर ऐसा ही कुछ पिज्जा आप वहां जाके खाइए, तो एकदम सिंपल तरीके से वो बना के आपको देंगे, जहां पर आपको टेस्ट मजा ही नहीं आएगा। इसी तरह से एक और बिजनेस है, दैट इज डिज्नी। डिज्नी modified its form from Chinese audiences, incorporating cultural elements and adjusting storyline to comply कम टू कंप्लाई, डिज्नी बोला टू कम, क्या लिखा है, और ऐसे एंड एडजस्टिंग स्टोरी लाइन टू कंप्लाई विद सेंसरशिप रिक्वायरमेंट। सेम विद द डिज्नी audiences of the Disney is a very international firm, it is an international firm, okay, movie firm Disney। तो उनका जो प्रेफरेंसेस था चाइना में, इनको सबसे ज्यादा बूम मार्केट मिला चाइना में, चाइना से, तो वहां का प्रेफरेंसेस इनको डालने के लिए लोकल चाइनीज पीपल का प्रेफरेंसेस जो है उनका अपना मूवीज में डालना पड़ा। आप जितने भी डिज्नी वाला मूवीज पिक्चर्स आप देखोगे, डिज्नी मोशन पिक्चर्स, उसमें इंसेप्शन ऑफ कराटे, कुंग फू, जूडोस, ये सब डाला गया था। फाइटिंग सीक्वेंस जो था पहले, क्या ऐसा था नहीं। आप 1940s 50s 60s का फाइटिंग सीक्वेंस सब देखिए, इतना फास्ट, इतना टेक्निकल वे में फाइटिंग नहीं होता था। तब क्या किया, डिज्नी को अगर हिट करना था, डिज्नी को अपना चैनल को हिट करना था, तो उन्होंने चाइना से ये सब कुछ लिया, और पूरा वर्ल्ड मार्केट में डिज्नी पूरा छा गया। ठीक है, दिस इज द वे, दीज आर द फ्यू। टोयोटा,
Toyota adjusts its management style with the US worker, empowering employees and promoting teamwork to enhance productivity. टोयोटा जो जर्मनी का कोई कंपनी है शायद, मे बी जर्मनी का या चाइना का, फॉरगॉट, जर्मनी या चाइना जो भी एक होगा, तो इनको फिर क्या हुआ, यूएस से मदद लेना पड़ा, बिकॉज यूएस आर वेरी मच कॉम्पिटिटिव, एम्प्लॉइज आर वेरी मच कॉम्पिटिटिव इनफ टू पुल एनी वर्क, तो वहां से उनको ये मदद मिला। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे उनको फिर वो राज करने लगा। दिस इज द वे। First of all, you need to know the preferences of the customer, preference of that particular country. What is the requirement of that? And after that, you need to add on that. You need to add on. इसीलिए आप मैकडोनल्ड खाने के लिए जब जाओगे, वहां पर मेनू चार्ट में देखिएगा तो बहुत सारा मसाला के साथ आपको मिलेगा। If you want to make it, if you can add on it. If you want to Yes, make sir. it, you can add on it. आप उसमें ऐड करवा सकते हो। आप ऑरिगेनो के साथ खाइएगा, आप ब्लैक पीस के साथ खाइएगा, आप ब्लैक ऑलिव के साथ खाइएगा, या ब्लू ऑलिव, ग्रीन ऑलिव, बहुत सारा एड ऑन है। ठीक है, बहुत सारा। This is the thing. Overcoming the cultural challenges and require business to invest in cultural training, conduct throughout the market research, and build strong relationship with local patterns. Cultural intelligence, the ability to understand and adapt to different cultural contexts, is a critical skill for international business professionals. By embracing cultural diversity and fostering cross cultural understanding, business can unlock new opportunities and build sustainable competitive advantage. Same line जो मैंने पिछले स्लाइड में पढ़ाया था, the same thing has been repeated again, that if you overcome the cultural challenges in business, then only you need to invest. So first investment you should know, for any international businessman, for any international businessman, you should know the cultural training. You should take cultural training. यहाँ पर बता रहे हैं आप उस कंट्री का कल्चरल ट्रेनिंग लीजिए। अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस ओपन करना चाहते हो, करना इंटरनेशनल चाहते हैं बिजनेस तो ग्रो चाहते हो, तो आप वहां पर का कल्चरल ट्रेनिंग लीजिए, क्या प्रेफरेंसेस वहां पर है। अब हम यहाँ पर साउथ इंडियन का एक्शन सीक्वेंस वाला मूवीज अगर चाइना में चला दी, तो चाइना का पीपल उतना एक्सेप्टेड नहीं करेगा। वाई? बिकॉज चाइना इज वेरी मच एडवांस्ड इन मार्शल आर्ट, किक बॉक्सिंग एंड जूडोज, बहुत सारा कुछ, कराटेज नॉल। तो उनके लिए इंडियन एक्शन जो सीक्वेंस बनाया जाएगा वो उनके लिए बहुत स्लो है। It's little bit of slow. They doesn't have enough time to look for 3 hours with this stunt and fighting sequences that happens in India. Okay, no, उतना टाइम नहीं है उनके पास, उस तरह का वो सीक्वेंस देके हैबिचुएटेड नहीं है। ठीक है, उनको फास्ट चाहिए, कुछ अलग चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यू वांट टू टेक द कल्चरल ट्रेनिंग। उसके बाद क्या है, डू द कल्चरल रिसर्च। आपको रिसर्च करना पड़ेगा, क्या रिसर्च, क्या प्रेफरेंसेस है, क्या वहां का लोकल का टेस्ट क्या है, लोकल किस में ज्यादा प्रेफरेंस देता है। उसके बाद यू शुड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स विथ लोकल पार्टनर्स। If you want to grow yourself, if you want to excel in international business, then you need to take and you need to accept the local patterns. You need to understand the local pattern. You need to understand the local partners. You need to take grip in them. Then only you can follow. By embracing cultural diversity and fostering cross-culture outstanding understanding, business can unlock new opportunities and build sustainable competitive advantage. और इसी तरह से आप अगर इस चीज को फॉलो अप करते हो, इफ यू अडेप्ट दिस कल्चरल ट्रेनिंग, इफ यू अडेप्ट दिस कल्चरल प्रेफरेंसेस, embracing cultural local partners, then only you can grow and sustain in this competitive world of international market. Understood? This is called the challenges of international business. Any doubt? नो सर, क्लियर सर। Can I go? Can I go to the next slide? जा सकता हूँ? यस। ना तुम्हारा कोई टाइम हो गया है?
No, sir. No. ठीक है मैम, प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. Challenges is international business. वो था कल्चरल डिफरेंसेस. नाउ इट इज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर. पहला क्या Factor. था? व्हाट वाज द फर्स्ट? पहला क्या था बताओ? भूल गया. पहला था कल्चरल नहीं, डिफरेंसेस. पहले सर कल्चरल डिफरेंस था, कल्चर्स के हिसाब से हमें वहाँ पे बिजनेस करना है. कल्चरल के हिसाब से बिजनेस. ओके ठीक है. अब मतलब यहाँ, एक्चुअल, हाँ. अगर बोलो. अगर हमें इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो वहाँ के जो पीपल है उसके कल्चर्स के हिसाब से उनके अकॉर्डिंग हमें उनके टेस्ट के हिसाब से उनके कौम के हिसाब से जैसे धर्म है उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग बिजनेस बंद हो जाएगा वहाँ पे. वेरी गुड. वेरी गुड. वेल अंडरस्टूड. यू हैव अंडरस्टूड दिस स्लाइड वेरी वेल. पाकिस्तान में अगर बिजनेस करना है तो क्या प्रेफरेंस लेगा जानते हो तुम? डू यू नो दैट? हमारे इंडियन कल्चर से बहुत कुछ मिलता है वहाँ, लेकिन बहुत टफ है टू डू अ बिजनेस, टू ग्रो बिजनेस इन बांग्लादेश और पाकिस्तान. व्हाई यू नो? आपको पता है पाकिस्तान में हमारे हमारे बहुत सारा जो बहुत सारा प्रोडक्ट्स जो है वो इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है बांग्लादेश एंड पाकिस्तान. यस, बिजनेस करता है. ये सब लेकिन हम बांग्लादेश से तो बिजनेस होता पता है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो लेस, जो भी लेस और कुरकुरे आते हैं उसका जो आलू होता है वो बांग्लादेश में ही, मतलब कि आपका प्रोडक्शन होता है, लेकिन फार्मिंग वही हाँ, होता है. लेकिन एक बात है. आप खाने पीने का कोई भी फूड प्रोडक्ट्स, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द फूड प्रोडक्ट्स, रॉ फूड प्रोडक्ट्स और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, उसका कोई भी बिजनेस आप ना तो बांग्लादेश से साथ कर सकते हो ना पाकिस्तान के साथ कर सकते हो. एक बार बताता हूँ. एक बार देयर वाज एन इंटरव्यू गोइंग ऑन. आई जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट 2021 or 22. Wasim Akram interviewing to some lady, a press reporter, a lady press reporter, and she was asking few questions on food, especially on food. What you like most? What type of food? What type of culinaries you are like most? Whether you like spices, local food, spicy food or not. Wasim Akram told that particular press reporter or lady that our cultures, our eating style, and the style of Indian food are quite similar. Are quite similar because we are also spice oriented people in Pakistan, and Indian people are also spice oriented people in India. So whenever we visit to India, we doesn't feel that we are the outsiders because India is also our country. India is also the same as Pakistan. Okay. तो बट वन प्रॉब्लम इज देयर. क्या? मैंने कहा हमारे यहाँ वेजिटेबल्स का या वेजिटेरियंस का ज्यादा ऑप्शंस नहीं है. बिल्कुल नहीं है. बिल्कुल नहीं है. आपके इंडियन में वेजिटेरियन का ऑप्शंस बहुत है. दाल, ढोकला, फिर राजमा चावल, कढ़ी चावल, कढ़ी पकौड़ा. वसीम अकरम हैज गिवन न्यूमरस एग्जांपल्स. तो मुझे लगा कि वसीम अकरम ने, एक क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान, इंडिया को कितना एक्सप्लोर किया अपने आप से. He was just narrating one by one of vegetarian dishes. If you visit to South India, you have dosa, and I'm very fond of dosa, masala dosa. जबकि वो उनको आलू की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं. आलू की गोश्त, सब्जी तो नहीं बोलते, गोश्त, आलू की गोश्त उनको बिल्कुल पसंद नहीं है. उनको हर समय मसालेदार चटपटा खाना उनको बहुत पसंद है, वेरी स्पाइसी. और सबसे ज्यादा उनको अपने खाने में वो लोग तीखा बहुत यूज करते हैं. सूखा मिर्चा का इस्तेमाल बहुत होता है. बट कमिंग टू इंडिया, फुचकास, पानी पूरी, डोसास, इडली सांबर, आफ्टर दैट समोसास. बहुत आपके इंडियन में बहुत वेराइटीज है वेजिटेरियन का.
वेजिटेबल्स का, लेकिन हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक ही है, जानते हो क्या? चाय रोटी या चाय और शलगम की सब्जी, ए सॉरी, पूरी और सलगम की सब्जी। दिस इज द ऑप्शनल यू हैविंग। if you want to have vegetarian breakfast, if you want to have veggie breakfast, then you want only have only one or two options, not more than that. Paneer, you can opt it. Paneer, tofu, okay, you can have it. Apart from that, you can have it that puri, chai और पूरी सलगम की सब्जी। ओके। क्यों? सर उस इतना साइड तो हॉट, नॉनवेज तो बहुत ज्यादा चलता है। बहुत ज्यादा मतलब, तुम ऑलमोस्ट। सुनेंगे, मैंने तुमको जो बता रहा हूँ, उनका कहना था कि हमारे पाकिस्तान लाहौर, आप चले जाइए वहां, शायद ही कोई ऐसा घर है जिसमें कोई वेज बनता होगा। सुबह से लेके रात तक सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज, नॉनवेज, नॉनवेज एंड नॉनवेज, नॉनवेज और नॉनवेज। सोचो कैसा मॉर्निंग, निहारी, नल्ली निहारी, पाया, ये सबसे स्टार्ट होता है ब्रेकफास्ट, रोटी। और उनका रोटी हमारे, वसीम अकरम वाज ट्राइंग टू से दैट हमारी रोटी इन कंपेयर टू इंडियन रोटी वेरी नॉट, मतलब एकदम टोटली ऑपोजिट। उनका डो जो होता है, एक एक डो हाफ हाफ किलो का होता है, वो डो बेल के मोटा तगड़ा रोटी तैयार किया जाता है, उसको नाश्ते में खाया जाता है, इतना मसालेदार वो खाते हैं ना, अफसोस है, पेट आग लग जाएगा आपको। बट दे आर हैबिचुएटेड, दे डजंट फील एनी अनईजी फॉर दैट। तो जब वो नए नए इंडिया टूर करने के लिए आते, उनको बहुत सारा दिक्कत हुए थे। अब वो जो गोश्त खाते हैं वो हमारे यहाँ एकदम नहीं है, बिल्कुल वो अलाउड नहीं है। तो उनको फिर वो बकरा, भेड़, चिकन, ये सब उनको खाने पड़ा। अच्छा, ये भी पूछा गया मछली, नो, देर इज नो ऑप्शन फॉर मछली। वो हालांकि वो मछली लोग खाते हैं, लेकिन नॉट, सर प्रॉन खाते हैं, बासा, अच्छा। दिस टाइप ऑफ मछली का भी उतना ऑप्शन नहीं है। बासा, प्रॉन और रोहू मछली, दिस थ्री एग्जाम्पल्स ही हैज गिवन। Apart from that, they have varieties of meat in different style of cooking, in different type of दम लेके बनाना, कम दम में बनाना, प्रेशर कुकर में बनाना, कढ़ाई में बनाना, काले कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में बनाना, लॉट ऑफ तवा में बनाना, लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर। तो आप सोचो क्या पॉसिबल है मैं कुछ खाने का प्रोडक्ट्स का कुछ आउटलेट पाकिस्तान में जाके खोलूं? विल इट बी पॉसिबल? चलेगा? नो सर। कभी नहीं चलेगा, कभी नहीं। लेकिन लेकिन पाकिस्तान का कोई इंसान यहाँ आके अगर अपना दुकान खोले, बिरयानी, गोश्त, बहुत सारा आइटम्स, यहाँ आराम से 100 नहीं, चलेगा। 1000% चलेगा। डू यू नो व्हाई दैट? वसीम अकरम ने इसका आंसर दिया था, बिकॉज इंडियन पीपल आर वेरी रिच इन कल्चर, they have the unity in diversity, different cultures are there, lot of fusions are there, varieties of people with different level of taste, different level of cultures, of people are staying in India. That is why you can run a business in India, but it is quite impossible to run any business in Pakistan or in Bangladesh, not even in Sri Lanka। सोच रहे हो? नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, नेवर। तो दिस इज द थिंग। तो यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल्स आपको इसलिए दिया कि अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, सेम थिंग यहीं पर है। इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। पाकिस्तान का पॉलिटिकल फैक्टर कैसा है, यू नो दैट। मैं यस एग्जांपल सर। दे रहा हूँ इसका, तो आपको समझने में जल्दी आसान होगा और आपको दिक्कत नहीं होगा। पॉलिटिकल फंक्शन पाकिस्तान में कैसा है आपको मालूम है? कट्टरपंथी है, इंडिया के विरुद्ध। अगर चाहे तो इंडिया को एक दिन में कब्जा कर, उनका ख्वाब बना हुआ है कि आई नीड टू कैप्चर इंडिया इन वन डे। सब सर अल्लाह को ख्वाब ही पुकार बना रहा है, हुआ है। अल्लाह को पुकार रहा है और बैठा हुआ है साथ में, किस दिन हम लोग जाके कश्मीर या भारत को पूरा कब्जा कर लें, बिकॉज इट्स वेरी ख्वाब। रिच। ख्वाब ही है, ख्वाब ही रहेगा, हम्म। बता रहा हूँ। हम्म। तो आप सोचो, कोई इंडियन वहां पर जाके अगर कुछ बिजनेस करना चाहे, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल
फैक्टर्स। उसको रहने ही नहीं देगा, टिकने नहीं देगा फिर। रहने टिकने की अलग बात है, बिकॉज अगर वहां आप इंडियन क्यूजिन आप नहीं चला सकते हो मेरे भाई, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप पाकिस्तान को कितना एक्सप्लोर किए मुझे मालूम नहीं है, मैंने पाकिस्तान गया नहीं था, लेकिन मैं यहाँ पर बैठ के अपने लैपटॉप में या मोबाइल में बैठ के पाकिस्तान को बहुत सारा कुछ एक्सप्लोर किया है। ड्राइव एंड लिसन बोल के गूगल में टाइप करना, और वहां पर ड्राइव एंड लिसन गूगल में टाइप करने के बाद हेडफोन लगा के उसको फिर जो जो सिटीज आपको एक्सप्लोर करना है उसमें आप क्लिक करना। तो मैं पेशवार, लाहौर, पाकिस्तान इनको एक्सप्लोर किया हूँ। उसमें बहुत सारा ऑप्शन है, फूड, कल्चर, ट्रेडिशन, रिच। मैं फूड कल्चर तीनों में एक्सप्लोर किया हूँ। अनआइडेंटिफाइड, अनबिलीवेबल, the way they are having the breakfast, the way they are using the clothes, the way they are wearing the shoes, each and everything is differences. There are a lot of differences, lot of differences. इसलिए शायद इंडिया के साथ कोई बहुत कम ही उनका फूड एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट हो, इम्पोर्ट तो कुछ करते नहीं है शायद पाकिस्तान से, मुझे नहीं लगता, या एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं इंडिया से, गेहूं हुआ, प्याज हुआ, हो सकता है, मुझे पता नहीं, खिलौने हुआ, ये सब कुछ हो सकता है वो हो। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कुछ इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट होता है, बिकॉज वहां जैसे मैंने देखा जो कपड़ा वो लोग इस्तेमाल करते हैं, क्लोथ्स, देयर क्लोथ्स आर, द मेन हु आर वेयरिंग द क्लोथ्स नॉट फैंसी एनफ, नॉट फैंसी, उनका 2 फुट या 1 फीट या 1 फीट नहीं, या 6 इंच, 1 इंच छोटा कुर्ता उनका सिलाएगा, पैजामा भी 1 इंच 2 इंच का छोटा सिलाएगा, शूज भी नो सॉक्स शूज उनका नहीं, छोटा, ऐसा। यहाँ तक कि जब मैंने उसमें ट्रेन जर्नी वाला, मैंने उसमें ट्रेन जर्नी वाला जो किया, तो ट्रेन जर्नी में एक इंडिया वहां पर विजिट, इन इंडियंस गया था पाकिस्तान में, ट्रैवल कर रहा था पाकिस्तान ट्रेन में, कुछ पेशावर, लाहौर, वो सब ट्रेन में जा रहा था। उनका जो कैंटीन है, मैंने क्या मैं बोलूँ आपको, आप मैं क्या बोलूँ, उनका कैंटीन में फूड सर्व होता है, सुबह जाओ शाम जाओ, जो फूड होता है वो सिर्फ बिरयानी एंड बिरयानी एंड बिरयानी, देयर इज नथिंग नथिंग एल्स यू कैन हैव। और वो बिरयानी और चावल, बिरयानी और चावल, बिरयानी चावल का कॉम्बिनेशन आपको समझ में आएगा, चिकन और चावल जो हम लोग खाते हैं वो वहां पर बिरयानी और इसे कहा जाता है, वही आपको मिलेगा। वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। तो वो जो बंदा पाकिस्तान घूम के आया था, उनका कहना था बहुत दिक्कत होता है यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए, इंडियन स्पेशली इंडियन पीपल, especially Indian people, they are very much finding very difficult to survive in the Pakistan region because अब मॉर्निंग में हम लोग का चाय नाश्ता करने का, हम लोग चाय बिस्किट खाते हैं, वहां पर सुबह नल्ली निहारी रोटी, नान, इससे से शुरुआत होता है। तो आप एक दिन खाओगे, आपका तो पेट ही खराब हो जाएगा यार, आप हॉस्पिटल भर्ती होना पड़ेगा। यस सर। आप खाली पेट ये सब चबा सकते हो, नॉट पॉसिबल यार, टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन दे आर हैबिचुएटेड। तो ये पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकली वहां पर बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। And the same with the Bangladesh is also East Pakistan, which we call it. The same with the problem we have with East Pakistan also. Okay, तो चलो, economic and political factor present significant challenges in international business. What are they? Impacting investment decisions. क्या क्या हो सकता है? Impacting investment decision. Whenever you are trying to invest on that, there will be going to create a very big impact on that. Lot of questions will be going to be asked by political field in politics. When Adani want to start a business with the America, lot of people, Indian politics, Indian government started raising questions. Opponent party, opponent political parties, opposite political party, they're trying to ask a lot of questions on Adani. They're pointing out fingers on Adani, Ambani, and all, that why they want to so started a business with internationally. Why not with the Indians? Why they want to set up their companies in outside the India? Why not in India? A lot of questions they have asked, but they doesn't look the far beyond it. That if you want to do the business internationally, then only Indians can going to earn maximum profit. We Indians will going to boost it up. They never look up that. They only look at the one side of the business. They only look at the one side of the coin. Okay, trade flow, the flow of the trade will going to stop. आपका जो फ्लो चल रहा है वो स्टॉप कर दिया जाएगा, एंड क्या होगा, एंड द ऑपरेशनल एफिशिएंसी इट विल गोइंग टू रिड्यूस। अगर पॉलिटिकल, देखो कहा जाता है एक इंसान को अगर कोई बर्बाद कर सकता है ना, तो वो पॉलिटिक्स आपको बर्बाद कर सकता है। कभी भी
नेता, sir. कोई रईस आदमी से और पुलिस से, इन तीनों इंसानों से आपको दूर रहना पड़ेगा। पुलिस आपको मतलब क्या बोलो, झूठे केस में फंसा के आपको एनकाउंटर तक करवा सकता है। अमीर आदमी आपको किसी भी हद तक आपको फंसा के आपको जेल भेज सकता है। इसलिए ये दोनों से आपको बच के रहना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को आपको स्टॉप कर दिया जाएगा। पॉलिटिकल इतना खतरनाक चीज है, इतना पावरफुल चीज है, मतलब वो आपको कहीं ना कहीं आपको स्टॉप कर दिया जाएगा। मैंने आपको पिछले वाला स्लाइड में एग्जांपल दिया ना, द प्लेस इन कदमा, द मेन एपिसेंटर, देयर इज अ वन शॉप, and that particular shop is the permanent shop in the middle of that particular road. Only one permanent shop is there. How it happened? It happened because of the political power. It happened because of the political administration. Jharkhand Mukti Morcha's one eminent leader, he used to be the friend and philosopher and guide and family member of that particular person who has opened this shop in the epicenter of Kalma area. Okay. Next day, police came, make a line with a chalk, and ordered everybody else that whosoever will going to make any create any objection to this particular man, he or she will need to pay a very good amount. He or she will need to pay a very good, means he will she will going to pay anything, any good or bad happens to that particular person. ऐसा थ्रेड देके गया था. And the next day, very next day, after 1 week, not very next day, after 1 week, slowly, the establishment of that particular shop has been started yet. Nobody has anything to say about that because now JMM is in grip. But the people know it that the very next day, if the BJP again comes down, if the BJP again started and gaining its momentum and gaining the confidence, the next day this shop will be thrown out. उनको ये भी पता है कि अगर बीजेपी सरकार पूरी बहुमत से झारखंड मुक्ति मोर्चा को हटा के फिर आ गया ना झारखंड में, तो ये दुकान दूसरे दिन अब नहीं दिखेगा, लात मार के तोड़ ताड़ के उठा के दे देगा। लेकिन जब तक है उसको कोई हिला नहीं सकता है। कभी आना यहाँ पर एयरपोर्ट के पास, चौंक जाओगे देख के, यू विल सरप्राइज। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। ऑल द शॉप्स आर टेम्पोररी रिसाइडिंग ओवर देयर, ओनली दैट पर्टिकुलर शॉप, वो भी मिडिल में। सोच सकते हो कितना पावर है। सर एयरपोर्ट मतलब कागल नगर वाले रोड में से सीधी कागल नगर वाला बड़ में एयरपोर्ट का बगल वाला रूट से जा रहे हो ना, एयरपोर्ट सोनारी एयरपोर्ट देखे हो, यस सर रामनगर काली मंदिर देखे हो, हाँ 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 रामनगर काली मंदिर के वहीं पर है वो दुकान, एकदम बीचों बीच। बहुत बड़ा पान दुकान, बहुत बड़ा पान दुकान। कैन यू एवर एवर इमेजिन, उतना बड़ा एरियाज में वो परमानेंट दुकान बना के रख दिया है जहां पर अलाउड नहीं है। टाटा स्टील का जमीन है वो। इतना पॉलिटिकल प्रेशर, इतना पावर से एडमिनिस्ट्रेशन ने बोल करके वो दुकान लगाया है, पान दुकान, वो भी पान गुमटी। लेकिन जो लगाया है वो भी जानता है कि जिस दिन बीजेपी पूरा बहुमत से यहाँ पर आ जाएगा, वो लात मार के मेरा दुकान उठा देगा, रखने नहीं देगा। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। घाटशिला का मैं बता देता हूँ आपको। घाटशिला में अभी कोई एक नेता अभी सांसद हुआ है, तो जिसको अभी टिकट मिला है कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब इसमें कैबिनेट में बैठने के लिए, वही उसका रिलेटिव्स है, करवाया है इसे। आई फॉरगॉट दैट पर्टिकुलर नेम, वो करवाया है ये चीज एकदम ओपनली, ट्रेड देके गया। स्पेशली जितने भी सारे दुकानदार थे, यूनियन लीडर्स था, सबको पुलिस आके ट्रेड देके गया शाम को। If anybody try to mess with this particular person, the next day he or she had to pay a great tax. He had to pay a huge amount of tax for that. मतलब बहुत कुछ आपको पेड करना पड़ेगा फिर दूसरे दिन। सोच नहीं सकते, इतना बड़ा थ्रेड देके गया तो कोई हिम्मत है? पुलिस से बड़ा कोई गुंडा नहीं होता है। बस दुकान चल रहा है, बिंदास है वो दुकान। कोई सर मतलब उसका मतलब कि बीजेपी का आते आते सर उसका जितना मतलब कि इन्वेस्ट किया वो सर अर्न कर लेगा प्रॉफिट। हाँ, जैसे हाँ कर लेगा, उसके बाद वो तोड़ भी देगा, उठा भी देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट दिस थिंग्स हैपन, ठीक है, ऐसा भी होता है। देखो इसीलिए वही चीज सेम लिखा हुआ है, corruption and government intervention create a additional risk and uncertainty in international business. What are the important, देखो क्वेश्चन आ सकता है, what are the important
things that, or whatever the important points you need to mention, for which the challenges in international business going to be a risk factor. तो क्या क्या हो सकता है? वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिस कंट्री का पॉलिटिकल स्टेबल नहीं है, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, खिचड़ी वाला सरकार है, एक दो दिन में गिर जाएगा, 5 साल भी नहीं टिकेगा, इस तरह का शहर में आप इंटरनेशनल बिजनेस नहीं कर सकते हो। दूसरा, करप्शन, ह्यूज अमाउंट ऑफ, जो पाकिस्तान में मैंने आपसे कहा है, विल इट बी पॉसिबल फॉर यू, एनी इंडियन बिजनेसमैन, टू ओपन or do a business in Pakistan? No, because the government is corruption over there. There is a political instability. Political वहाँ स्टेबल नहीं है, करप्शन है, आप कभी नहीं खोल सकते हो, उस जगह पर नहीं खोल सकते हो। एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अब जो कदमों वाला मैंने एग्जांपल दिया आपको, रातों रात वहां से हटा के वहां नया दुकान, परमानेंट दुकान करके गया है। वहां पहले जहां पर दुकान बना था, ये पहले दुकान था, वहां एक पहले आलू चॉप, जो ये आलू चॉप ये सब का दुकान था टेम्पोररी, उस सबको हटा दिया पीछे और उसका जगह लेके वो दुकान स्टैब्लिश कर दिया। तो गवर्नमेंट जब इंटरवेंशन करता है किसी चीज पे, तो वहां पर आप बिजनेस नहीं कर सकते। जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगा, आप इंटरनेशनल बिजनेस कर नहीं सकते, नहीं आपको करने नहीं देंगे। पॉलिटिकल बहुत खतरनाक चीज है, पॉलिटिकल पावर बहुत बड़ा पावर है, आपको बर्बाद कर सकता है, तोड़ सकता है, डुबा सकता है। ठीक है, क्रिएट एडिशनल रिस्क, ओके। उसके बाद इंटरवेंशन एंड एडिशनल रिस्क, अनसर्टेनिटी इन इंटरनेशनल बिजनेस, और कुछ एडिशनल रिस्क जो आपको लेना है। अगर वो रिस्क आप नहीं ले पाए तो आपके लिए इंटरनेशनल बिजनेस संभव नहीं है करना। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैन डिसरप्ट ऑपरेशंस, जो मैंने कहा है, पॉलिटिकल एक इतना गंदा खतरनाक चीज है, तो आपका दुनिया, कैरियर, सब कुछ बर्बाद कर सकता है। वेब सीरीज में एक नया मूवीज आया है शाहिद कपूर का, वो फिल्म कभी देख के देखना, इट्स रियली अमेजिंग मूवी। देवा। दैट इज ऑल्सो, ये अगर देखे हो तो बहुत बढ़िया है। यस, द देवा, मतलब पुलिस तो साइको पुलिस बना हुआ है, लेकिन पॉलिटिकल का वहां जो मतलब सिनेरियो बताया ना, आप सोच नहीं सकते हो। एक कमिश्नर को ओपनली इन बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, इन फ्रंट ऑफ एवरी पब्लिक, ओपनली थ्रेटनिंग दैट इफ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस कंट्री, देन यू नीड टू सर्व मी। डायरेक्ट बोल रहा है रोड में, ओपन। यस इफ सर। यू वांट टू सर्वाइव इन दिस कंट्री, अगर रहना है इस शहर में, इफ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस सिटी, यू नीड टू सर्व मी। मुझे सर्व करो, नौकर की तरह मुझे पूछो, अगर तुम इस शहर में रहना चाहते हो। इतना बड़ा थ्रेट कौन दे सकता है? एक पॉलिटिकल लीडर छोड़ के। वो जानता है ट्रांसफर करवा सकता है, हटा सकता है, मार भी सकता है। पॉलिटिकल मर्डर तो करना कोई आम बात है, उससे बड़ा कोई चीज नहीं होता है। उसके बाद डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, अगर वो डैमेज्ड है, अच्छा नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ मार्केट, एक्सपायर हो गया, उससे आप काम नहीं बना सकते हो। उसके बाद क्या है? थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग बहुत बड़ा खतरनाक चीज है। थ्रेटनिंग टू सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स, आप या जिस एम्प्लॉयज आपके अंडर में काम करता है, उसको अगर आप कोई थ्रेट दे रहा है, उसका कोई सेफ्टी नहीं है, आपका कंपनीज, आप खुद, वो कंपनी पूरा डूब जाएगा। आपके अंडर में कम एम्प्लॉयज काम कर रहा है, ठीक है, उसका सेफ्टी नहीं है, एवरी डे ही और सी रिसीविंग अ थ्रेट, political threat, local threat, everywhere you are getting threat and there is no safety। आपका कंपनीज जो है वो तो डूबेगा ही डूबेगा, आप भी डूब जाओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। करप्शन इंक्रीजेस कॉस्ट, distorts market and undermines ethical business practices। Government interventions such as nationalizations and exportations can result in the loss of asset and investment। यहां बता रहा है कि किसका किसका इंटरवेंशन ज्यादा होने से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, हो सकता है। गवर्नमेंट अगर आया, आप अपना एक्सपेंडिचर, आप अपना प्रॉफिट, आप अपना रेवेन्यू जनरेट, यू विल ऑल गोइंग टू लूज, यू विल ऑल गोइंग टू लूज। And if the political intervention is there in your work, then also the same thing will happen, you will going to lose your revenue, you unable to generate the employees, you unable to generate your profit, if you are unable to generate the revenue from your business that you are doing internationally। So these are the two important, means what you can say, thorn
in the roads. Way to your goal, these are the big thorns. Thorns मतलब कांटा आपके राह पे बिछा हुआ है. ये दो कांटा ऐसा कांटा है कि आप चाह के भी उठा नहीं सकते, चाह के भी हटा नहीं सकते. इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. आपको इनको साथ में लेके चलना है, आपको इनको लेके साथ में चलना है, नहीं करना है. आप एक 10 बाई 2 की जगह पे आप एक छोटा सा चाय की टपरी खोल रहे हो. आपको पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस, आपको टैक्स, आपको एवरी डे यू नीड टू पे. कदमा जो बाजार एरिया है जहां पर नीचे जो बैठते हैं, नीचे जो वेंडर्स बैठते हैं, सब्जी बेचते हैं, नीचे वाला, पता है ना, छोटा सा बैग लगा के या छोटा सा बस्ता यस लगा के सर। लौकी, साग, फल, सब्जी ये सब बेचता है. उनके सामने कभी गए हो? कभी जाके देखना. यू आस्क देम एवरी डे शाम को 5 बजे. मैं तो कभी कभी कॉलेज से जब वापस आता हूँ तो वहां से मार्केटिंग सब्जी वगैरह लेके घर आता हूँ. ठीक है, मुझे वही टाइम मिलता है. तो आई यूज्ड टू गो देयर एंड आई जस्ट ऑब्जर्व देम every day near about 5:30 a person with a white shirt, blue pant, holding a phone in his hand, having a cigarette in his left hand, just coming down and just showing his hand, and without any question, without any further delay, every street vendors paying the money to that particular person. And once I asked to a old lady that why you are paying every day, क्या करूं जहां साहब उसका जगह नहीं है, फिर भी हमें ये टैक्स के रूप में हमें 20 रुपया देना पड़ता है एवरी डे. एवरी डे 2 टाइम 40 रुपया, 2 टाइम 40 रुपया एवरी डे में बैठना पड़ेगा, देना पड़ेगा. नहीं तो क्या होगा, वो यहां से मुझे हटा के दूसरे को बिठा देगा. दूसरे यहाँ पर 50-60 रुपया देने के लिए तैयार. तो मुझे अब अपना पेट काटने के लिए, पेट चलाने के लिए देना ही पड़ेगा. सो टफ टू डू अ बिजनेस नाउ ए डे. सोचो, एक आदमी सफेद कमीज ब्लू पैंट पहन के हाथ में मोबाइल और सिगरेट लेके एवरी डे 5:30 में वो आते हैं, वहां से वो पैसा लेके जाते हैं. एवरी जो नीचे बैठा हुआ है स्ट्रीट वेंडर, एंड यस, विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनीथिंग, ही इज पेइंग. दे आर पेइंग टू दैट पर्टिकुलर मैन. तो मैंने जब ये सवाल किया तो मुझे कहा कि सर ये तो यहाँ का मतलब ये जो पूरा एरिया है उनका ये ठेकेदार है. मतलब ठेकेदार मैं क्या बोलूं, वो कलेक्शन कर पैसा कलेक्शन करता है, मालिक तो कोई और है. तो मैंने कहा ये जगह तो टाटा टिस्को का है, तो फिर आप लोग काहे दे रहे हो? बोला कौन मना करेगा भाई, उनका यूनियन है, उनका यूनियन लीडर है, वही अगर बैठने के लिए ना दे तो मेरे जगह यहाँ पर 10 दुकानें और लग जाएगा. सर मैं क्या करूंगा, पेट में लात मार के कहाँ बैठूंगा? कहीं भी बैठने के लिए जाओ. अच्छा चलो ये तो बात हुआ. साक्षी में, मांगू में, कहीं पर भी आप ऑटो खोलने के लिए जाओगे, ऑटो स्टैंड में आपको सबसे पहले परमिशन लेना पड़ेगा. यू नीड टू हैव अ परमिशन, अदरवाइज जो ऑटो का यूनियन है आपको चढ़ने नहीं देगा, चढ़ाने नहीं देगा गाड़ी. जानते हो ये जो ई रिक्शा आया है, ई रिक्शा जानते हो ना, बैटरी से चलने वाले ई रिक्शा, यस इनका सर। कोई इनका कोई स्थायी जगह नहीं है जहां से आप पकड़ सकते हो. जैसे आपको मोनो सोचो, साक्षी स्टैंड से आपको ऑटो मिल जाएगा, आदितपुर स्टैंड से आपको ऑटो मिल जाएगा, मानगो स्टैंड से आपको ऑटो मिल जाएगा. ये स्टैंड है, स्पेसिफिक स्टैंड. इफ यू गो देयर, स्टैंड फॉर अ व्हाइल, यू गेट एन ऑटो. बट देयर इज नो स्पेसिफिक प्लेस ऑफ दिस ई रिक्शा. दे आर कंटिन्यूअसली रनिंग ऑन अ रोड. दे आर कंटिन्यूअसली रनिंग ऑन अ रोड. एंड इफ यू आस्क देम स्टॉप फॉर अ व्हाइल, वहां से लात मार के भगा देता है. चल चल यहाँ से निकल, निकल, यहाँ जगह नहीं है तेरा, भाग यहाँ से. हम लोग को लिए खड़े होने का जगह नहीं है साहब. हम लोग को कंटिन्यूअस रोड में चलना पड़ता है. क्यों? हम लोग पैसा देने से मना कर दिए, इसलिए हम लोग का अलग से स्टैंड नहीं बना है. हम लोग अलग से ऑटो स्टैंड के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं सर. हमारा बिजनेस हमको ऐसे ही अपने से चलना पड़ेगा. कोई प्रोटेक्शन नहीं है. पुलिस कभी पकड़ लेता है, पुलिस को पैसा देना पड़ता है. कोई ये नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है. हमें कंटिन्यूअसली अपना फ्यूल, अपना बैटरीज ये करना पड़ता है. इतना तकलीफ में वो लोग बिजनेस करते हैं. कैन यू एवर इमेजिन? तो ये तो मैंने एक छोटा सा बात बता दिया. तो सोचो पॉलिटिकल आपके पीछे अगर पड़ जाएगा तो आप चैन से बैठना क्या, आप सुसाइड कर लोगे. यू विल डू अ सुसाइड. दिस यस इज द सर। थिंग. So these are the factors. Recent example illustrate the impact of economic and political factors on international business. Now, Brexit has created a significant trade barriers between the UK and EU. EU मतलब European, by impacting business in various sectors. The US-China trade war has resulted in tariffs and restrictions on trade and disrupting global supply. अभी रिसेंटली तुमने पढ़ा है अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया, टैरिफ रेट बढ़ा दिया.
आपको अगर गुड एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, इतना % टैरिफ हमको पेड करना पड़ेगा। तो बहुत सारा जो है अब यूएसए से बिजनेस करना नहीं चाहते। अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर सब बिजनेस करना चाहते हैं, लाइक इन इंडिया, लेकिन इतना टैरिफ बढ़ा दिया है कि अगर वहां से आप कुछ एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करके यहां लेके आते हो, आपको बहुत सारा टैक्स यू नीड टू पे फॉर दैट। तो दिस इज द प्रॉब्लम। क्या है, वहां का पॉलिटिकल ने ऐसा किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया है, पॉलिटिकल फिगर ने ऐसा कर दिया है, और उसको मना करने गए। तो सुने हैं नरेंद्र मोदी अभी गए थे, विजिट फिर से किया, फिर से टैरिफ के बीच में बातचीत हुआ है, फिर दोनों ने न्यूट्रलाइज हुआ है, दोनों ने कहा है कि ठीक है हम ये टैरिफ लगाएंगे, आप वो टैरिफ लगाएंगे। अब बीच का एक निगोशिएशन जिसे कहते हैं, उसमें बातचीत हुआ है, सॉल्व ट्राई करने की कोशिश किया है। अब कितना हुआ है दैट आई डोंट नो, बट दिस इज द हैपनिंग, ये थिंग्स है। लेकिन एक कंट्रीज का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी एक पॉलिटिकल वजह से है, और एक अगर कोई कंट्रीज का इस्टेब्लिश सही तरीके से नहीं हो, इकोनॉमिकली वीक अगर हो रहा है, वो भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से है। ठीक है, दिस आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। समझ में आ गया? यस सर। ओके मैम, प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओवरकमिंग सर चैलेंजेस, हाँ बोलो। टाइम हो गया सर, उनको जाना है। अच्छा, अच्छा ठीक है, टाइम हो गया, ठीक है, तो यही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम ओवरकमिंग चैलेंजेस इन इंटरनेशनल बिजनेस हम पढ़ाएंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके सर। ठीक, ओके चलो, थैंक यू। थैंक यू सर।